We'll just think about what we need to do tomorrow and then take it from there. Rohit, not a lot of one-dayers for India last year. In that context, to have this series against England, and not just the victory margin, but the fact that so many good things came out of that, what does that tell you going into this tournament? Yeah, playing that series, we knew there's not enough games that we have before this tournament, but I think whatever we spoke of, whatever as a team we wanted to do, the ethics of this team, the brand of this team that we wanted to play, I think we pretty much did that in all games. When you're playing a series before a tournament like that, you want to try and tick off certain boxes, and I thought we ticked off those boxes. We played very good cricket. We batted well, and we bowled pretty well. Got a team like England. Sorry about this. Got the team restricted for a below par score on 3 occasions. So twice we bowled first, once we batted, and we posted 350 runs, 350 odd runs there. So all in all, I think it was a good series. But I said it before, the series started, that we wanted to do things where we left off in the World Cup and carry on that kind of momentum into that England series, and from there onwards to the Champions Trophy. But we do understand that every it's good. Every series we play is a different challenge. Every venue has its own challenge, and Dubai obviously will be a different challenge. So quickly assessing what's required to do here tomorrow will be the key for us. So if we can assess quickly and adjust our batting or bowling quickly, that will help us moving forward. Hi Rohit, Nikhil here. My questions regarding the conditions. We had a very unusual scenario yesterday where we had overcast conditions and it kept raining here in Dubai. It's expected to be overcast on match day as well. How does that alter your plan in terms of what you thought when the team was selected and when you come here with the overcast conditions? And also dew, we know, is a major factor here in Dubai. You've been here for a few days. What have you noticed with that? I'm not too sure about the dew. Dew is a very unknown factor to all of us, and it is very, very unpredictable because, like for us in India, we are so much aware of certain conditions and certain venues. That also surprised us a little bit when we played in Nagpur the previous day before the game. There was so much dew, but during the game there was no dew. So you can't really think too much about that and prepare based on that. In terms of the conditions, the overhead conditions, I think it's not a massive difference where you're playing in 28, 30 degrees to a 10 degree or a 15 degree. It is going to be overcast. If it is, we have the arsenal to combat that. If there are conditions which is helping the bowlers with the overhead conditions, the bowlers are there to exploit that. And the batters, if we bat in those overhead conditions, they exactly know what to do. Yeah, Rohit, Josh Butler said after that series that the big difference was, India's top batsmen getting hundreds. He was referring to your hundreds. This during the course of conversation with Michael Atherton and Nasser Zain in Sky Sports. How much of this conversation goes on in your team? And they also said that there is a 2020 style of play reflected more in one-day cricket now. What is the question? No, the question is, were the top 3 or 4 batsmen getting hundreds for big totals? Yeah. Of course. I mean, that's the key to have success in this format. Your top 3, 4, 5 batsmen needs to get that big score for you to post a big score eventually. So I think, our top 4 batters are quite experienced, and we know that once they are set, once they are in, they like to get those big runs.
So they do understand that, and everyone understands that, between your top four, one has to get that big score. And in the World Cup, we've seen it as well when we played that ODI World Cup. There were only few hundreds that we scored, but we went on to score quite a few times, 350 plus scores or 330 scores like that. So I think it's about all 7-8 batters chipping in, whether you get big score or not, but all 7 or 8 batters needs to contribute. And whatever the responsibility, whatever the understanding that we have of them, it's all about, putting those contributions ahead. I have seen it in the recent past where even without scoring 100, the teams have managed to get par score or above par score in ODI format, because everybody wants to chip in and everybody has chipped in. That will be our focus. We will not be looking at the individual milestone and stuff like that. We want to play whoever the 2 batters are in there, they have to do the job, and the guy goes in after that has a job to do as well. So if 7-8 of us think like that, we will end up getting the score that we are looking for. So it's just about everyone contributing to the cause. Rohit, are you happy with the form of your deputy Shubman Gill, considering struggled a bit in Australia, and after that the way he's come back, with the good runs in the series against England? No, look, Gill is a very, very classy player. There was never a doubt about his ability in this squad. The formats, I think we tend to mix formats, and I don't think that's the right way to judge any player. Certain players have their strength in certain formats, and if the one format doesn't go well, doesn't mean that the other format will be the same. And it's there for all of us to see what happened in Australia. Things have changed, suddenly in a different format. So with Gill, we know the numbers are crazy of Gill. If you look at it, he's been superb for us in the last 3-4 years that he has batted. And obviously there is a reason that he's been elevated to be the vice captain of the team as well. Hopefully, he has a great tournament, and it eventually will help us achieve that things that we are looking to achieve. Rohit, you will be playing all your games here in the Dubai. The surface here produces results that helpful for the chasers. Toss plays a vital factor actually. So in that context, what are the T21 World Cup, 21 IPL, even IL T20 recently, the chasing team was winning. So their luck plays a very big factor, and you will be playing all the games here. So that is what is your perspective on that? No, look, I never go with a set plan of thinking about this. In this venue, this has worked for certain teams, so we should try and do that. Whatever works for us, we will try and do that, whether it is batting second or batting first. I've still not seen the pitch. We need to still see the pitch and talk to the groundsman about the conditions of the ground and stuff like that. Whatever the recent games have been played here were all T20 formats. So I don't know if it's the right thing to look at that and do our judgment. I think it's important that whatever we feel is comfortable doing against certain opposition, okay? Because all oppositions are different. Some oppositions like to bat first and put runs on the board. So we would, think about it, whether we want to make them bat first or not. So it works like that. With me, at least, if I have to be really honest, I think like that, where there are certain things, yes, that we want to do as a team, but you have to look at the opposition, that what they are comfortable doing as well. So there will be a lot of chat around that with me and Gigi and the other boys as well. And we'll do whatever is necessary for the team, whatever is right, we feel, we'll try and do that. Rohit, you had a chance to
You had a chance to look at Kuldeep and Shami returning from injury in the England series. Are they back to their best in terms of bowling fitness? Bowling fitness, they're fine. Look, again, Shami's played only 2 games, 2 international games, and then obviously couple of T20s as well. All we wanted with Shami was to get back wearing their India colours more than anything else. Whether he gets wickets or not, that was completely immaterial for us at that point. We wanted him to get back to playing for India, and he's done that. And whatever I have seen of him so far looks perfectly fine, absolutely fine. When you talk about a bowler like Shami, who's done the job over the years so many times for us, for them it's just about getting back to their rhythm, and hopefully he can find some rhythm early on in this tournament and help the team. Kuldeep, again, very similar, was injured, had a hernia operation just after that New Zealand series, and was out of action for 2.5 months. And for him also it was important to get back playing and get back into that rhythm. The 2 games that again he played, the numbers will not show, and with certain players you don't have to look at numbers so much and in detail. For certain players it's just about getting back to playing. The numbers will come, and that is what, as a captain, as a coach, our faith is in, with certain players. And whatever prep he's had coming here, he looks good, looks quite confident in what he wants to do. And if these 2 guys are in form, the team looks very, very different. रोहित, आप हमेशा बोलते हो कि जब इंडिया के लिए खेलते हो तो हर एक मैच इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट है कि 4-4 के ग्रुप्स है, हर मैच सचमुच का बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अच्छा खेले तो आगे निकल जाना और ख़राब खेल हुआ तो पैर फिसल जाना. इस हिसाब में ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट और पहला मैच का इम्पोर्टेंस आप क्या कहो? नहीं, देखिए, आईसीसी का जो भी फॉर्मेट आप खेलते हो, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाहे वो वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हो या ODI वर्ल्ड कप हो या चैम्पियंस ट्रॉफी हो, ये तीनों फॉर्मेट में आपके पास उतने मौके नहीं है कि आप कमबैक कर सको. हालांकि 50 ओवर वर्ल्ड कप थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 10 मैच आपको मिलते हैं खेलने के लिए. तो अगर आप 1-2 मैच फिसल भी जाओ तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस टू कम बैक. बट T20 में और इसमें हमने देखा है कि 2 या 3 लीग गेम्स है, अगर आप एक मैच हारोगे तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है. तो एवरी गेम बिकम्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. हम लोग सबको ये चीज़ पता है, बट इसके बारे में ज़्यादा सोच कर अपने आप को पागल नहीं करना है. आई जस्ट फील दैट let the game start and let's see where it goes. Rohit, Varun Chakravarti has been discussed all over the world. All over the world. How do you face him? अच्छी बात है ना. Yeah. How do you face him during the nets? I mean, do you still think that he's a mystery bowler? नेट में तो हमको ज़्यादा वेरिएशन से डालता नहीं है वो. एक ही तरीके से बॉल डालता है, तो शायद हो सकता है कि वो हमको भी नहीं दिखाना चाह रहा है कि उसके पास क्या है. But that is a good thing. If he's got certain weapon that he wants to just put it out there when it actually matters, I'm more than happy if he wants to do that. But he's got something different, which is why he is here with us. तो जितना भी उसका हमने पिछले 8 या 9 महीने में जो भी देखा है, काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है. तो इसीलिए हमको यहाँ पर उसको लाना था और देखना था कि उनके पास क्या है, ऐसे स्टेज पे टीम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं. तो let's see now what happens. गेम है, it's just about now executing that on the field. Thanks कैप्टन. Thank you everyone. Thank you. है और अभी ताज़ा तरीन खबर यह है, ज़राए की जानिब से बताया गया है कि फ़खर जमान ओपनिंग नहीं कर सकेंगे. उनकी जगह साउद शकील और बाबर आजम ओपनिंग करेंगे. इसकी तफसील जानेंगे फैजान लाखानी से. फैजान, क्या वजूहात सामने आई?
जी बिल्कुल। अब जिस तरह जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था न्यूजीलैंड की बैटिंग के दौरान, तो फखर जमान तवील अरसे तक फील्ड से एब्सेंट रहे। तो आईसीसी कवानीन के मुताबिक प्लेयर अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड से बाहर, ज्यादा वक्त तक अगर फील्ड से बाहर रहता है, तो फिर वो उतनी देर वो बैटिंग से नहीं आ सकता। तो जो एडिशनल पेनल्टी टाइम था, उसके बाद 20 मिनट इजाफी फखर जमान फील्ड से बाहर है। तो 20 मिनट पाकिस्तान की इनिंग्स के आगाज के बाद फखर जमान को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एबल के अगेन वो दोबारा बैटिंग करने के लिए उनको इजाजत हो। तो ओपनर अब फखर जमान नहीं आ रहे, और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की जानब से इस बात की तस्दीक की गई कि सऊद शकील बाबर आजम के साथ ओपन करेंगे, और इब्तदाई 20 मिनट के बाद फिर फखर जमान पाकिस्तान की जानब से बैटिंग करने के लिए एलो गई। यानी फखर जमान को 20 मिनट इंतजार करना होगा। आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फैजान लखानी, बहुत शुक्रिया आपका। इस पर बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट्स राशिद लतीफ़ और मोहम्मद आमिर ने हमें ज्वाइन किया है। राशिद भाई, आपसे आगाज करेंगे डिस्कशन का। एक तो सबसे पहले जो अभी ये ताज़ा तरीन खबर आई है, फखर जमान को 20 मिनट इंतजार करना होगा और वो ओपनिंग नहीं करेंगे, अब सऊद शकील और बाबर आजम ओपनिंग करने आएंगे। ये सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इनिशियल में देखें फखर मशहूर हैं कि पावर बैटिंग के लिए या इनिशियल ओवर में पाकिस्तान को ज्यादा रन चाहिए होते हैं। जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 ओवर में 91 रन किए थे, ठीक है, फखर ने 41 रन किए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फखर जमान का। ये तो थोड़ा शुक्र करें कि 15-20 मिनट हमने लेट बॉलिंग की है, तो वो टाइम और मिल गया, वरना 40 मिनट हो जाते ये, क्योंकि जितना टाइम आप रहते हैं उतना ही वक्त आपको लगता है। और ये तो आप बता जाएंगे, लेकिन ये देखना है कि उनकी इंजरी की नौयत क्या है, क्या वो जो बैक स्पाइन में या उनकी पुरानी नी की इंजरी है, मुझे इतना इल्म नहीं है। लेकिन अगर ये बड़ी, हमारी दुआ है कि बड़ी इंजरी ना हो और पूरा मैच ये निकालें और अगले मैचेस भी खेलें, लेकिन ये बड़ा सेटबैक है कि वो ओपन नहीं कर रहे। आमिर, आपको क्या लगता है? एक तो तफसील से हम हदफ पर भी बात करेंगे आपसे भी, राशिद भाई से भी, लेकिन ये फखर जमान ओपनिंग नहीं करने आएंगे, 20 मिनट इंतजार करना होगा। क्या ये क्रूशल स्टेज तो नहीं बन सकेगी? क्योंकि फखर जमान जब भी ओपनिंग करते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो हो सकता है कि सऊद शकील और बाबर आजम की ओपनिंग पार्टनरशिप लग जाए और अच्छा स्टार्ट मिल जाए हमें। देखिए मुबशर भाई, पहले तो हम काफी अरसे से क्यों इस बात को बार बार कह रहे थे कि आपके पास 2 जेन्युइन ओपनर्स होने चाहिए, 2 जेन्युइन ओपनर्स होने चाहिए, या हम बॉलिंग का क्यों कहते हैं कि पूरे बॉलर्स होने चाहिए। कि देखिए, इंजरी की कोई श्योरिटी नहीं होती, इंजरी किसी टाइम भी आपको गेम के दौरान हो सकती है। अब आप देख लें, इतने इंपॉर्टेंट मैच में इतना बड़ा हदफ है और 2 नए ओपनर्स हैं, मतलब दोनों पे अलग सा प्रेशर होगा। और जहां पे फखर एक ऐसा प्लेयर है जो आपको है वो ऊपर से एग्रेसिव स्टार्ट दे सकता है, तो अब दोनों ओपनर जो है वो नए होंगे। सेटबैक तो है, क्योंकि एक फखर ऐसा प्लेयर है जो एग्रेसिव प्लेयर है कि वो आपको 10 ओवर्स में आपको ऊपर से अगर चार्ज लेता है तो दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर सकता है। हम पिछले 1-2 हफ्तों से यही बात बार बार बोल रहे थे कि आपके पास 2 जेन्युइन ओपनर्स होने चाहिए, 2 जेन्युइन ओपनर्स होने चाहिए। अब आप देख ले, इतना डू एंड डाई मैच है ना ये, क्योंकि 3 मैचेस आप एक भी हारते हो तो ऑलमोस्ट आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हो। तो अब आप दोनों वो प्लेयर्स ओपन करेंगे जो वैसे ही ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। साउथ से भी परफॉर्म नहीं हो रहा, बाबर से भी उस तरह नहीं हो रहा, तो आई होप कि दोनों की पार्टनरशिप लगे और अच्छा स्टार्ट मिले ऊपर से। आमिर, 321 रन का हदफ इफ्तिताही मैच, और वही बात कि हमारा जो मैच होता है वो क्रूशल हो जाता है। शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर्स कराते हैं, कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए, 68 रन दिए। नसीम शाह ने 10 ओवर्स कराए, 63 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 83 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कहां पर गलती हुई आपके ख्याल में फास्ट बॉलर से इतने रन देने? बशर भाई, शायद मेरे से राशिद भाई और अहमद भी एग्री करेंगे, ओवरऑल हम बॉलिंग ठीक कर रहे थे। मुझे एक चीज से सिर्फ प्रॉब्लम है, जब आप कोई चीज पे प्लान नहीं करके आते। अगर आप ग्लेन फिलिप्स की ट्राई नेशन सीरीज भी निकाले और अभी भी निकाले, उसके सारे स्कोर मिड विकेट से लेके स्ट्रेट हैं। हमारे बॉलर्स ने अभी तक उसका कोई प्लान नहीं निकाला कि उसको कोई वाइड स्लो करे, कोई वाइड यॉर्कर करे, कि उसको एक्स्ट्रा कवर या पॉइंट की तरफ। अगर आप उसके स्टैट्स निकालेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसके कोई स्कोर होंगे एक्स्ट्रा कवर की तरफ या पॉइंट की तरफ। हम उससे सीधा शॉट खा रहे हैं या मिड विकेट खा रहे हैं, सीधा मिड विकेट। इसका मतलब है हमने कोई प्लान नहीं किया हुआ। एक सर्टन उसकी इनिंग थी जो 35 बॉलों पे 60 कर गया, पूरा ह्यूज डिफरेंस डाल गया। अदरवाइज हम उनको 260 270 पे आराम से पकड़ सकते थे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट मुझे जो होता हूं ना मैं, कि आप एक सर्टन प्लान्स जो लेके आते हो ना, कि बस ठीक है, अगर तो मैं अपने तरीके से बॉलिंग करूंगा, बैट्समैन मिस कर गया तो कर गया, अदरवाइज तो देखिए फिर यही होता है जो वो डैमेज कर गया एंड पे। सही। अहमद, आपको क्या लगता है? एक तो 321 रन का एक पहाड़ जैसा ये टारगेट है, और फिर ओपनर्स में
वो आ रहे हैं ओपनिंग करने जो पहले ओपनर्स नहीं रहे। साउथ शकील पहली दफ़ा ओपनिंग करने आएंगे, बाबर आजम जो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो एडिड प्रेशर होगा फ़खर जमान की एब्सेंस। 20 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा अभी फ़खर को। जी, जिस तरह का पिच था ना, उसके हिसाब से 300 विकेट तो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक सिचुएशन ऐसी भी बनी थी, 3 आउट थे, जहाँ पे 240-250 में अगर अच्छी बॉलिंग होती तो आप पकड़ सकते थे, लेकिन मसला फिर वहीं पे आ जाता है। एक तो आपके मेन बॉलर की भी पिटाई होने लग जाती है, और दूसरा मिडिल के अंदर जब प्रेशर डेवलप होता है, आपको विकेट चाहिए होती है, तो आपने जो है ना अपने पार्ट टाइम ओवर्स निकलवाने होते हैं, बड़ी सरदर्द है। उसके बाद देखिए, इस तरह के डिसीजन, मैच जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी सिलेक्शन कमेटी से, रिजवान से, आकिब जवेद से, सीजन है यार सारे, लेकिन इस तरह के डिसीजन नहीं समझ आते अजहर अली से, असद शफीक से, कि आपने इतने बड़े आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपने एक ओपनर, उसके बाद बाबर को आप ओपन करा रहे हो, रात जो है फखर खुदा न ख्वास्ता लंबे बाहर हो गए, तो फिर क्या बनेगा? तो ठीक है, वो बस बात सच्ची आ जाती है कि जितनी मर्जी आप क्रिकेट खेले हो, लेकिन ऐसा जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं या चीफ सिलेक्टर बनते हैं या पीसीबी के ओहदे संभालते हैं, कोचिंग में आते हैं, जरूरी नहीं है आपके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हों। और इस डिसीजन का पाकिस्तान को इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बहुत बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो इस सिलेक्शन कमेटी, अजहर अली, असद शफीक, आकिब जवेद और रिजवान ने मिलकर जो मसले किए। राशिद भाई, आपको क्या लगता है, ट्राई नेशन सीरीज में हम 2 मैच खेले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो होमवर्क तो हमारा ज्यादा होना चाहिए था, तो कहीं प्लानिंग का फुकदान नजर आया आपको बॉलिंग में? जी बिल्कुल, जिस तरह से आमिर ने कहा और अहमद ने, बात ठीक है कि स्पिनर की बातें या फास्ट बॉलिंग की वेरिएशन है। हम एक तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, अगर नोट करें, अच्छा बाउंसर नहीं है हमारे पास जो कि बैट्समैन को टेस्ट कर सके, या 100 ऐसा नहीं है कि वो कर सके। स्पिनर्स ने आज 20 ओवर में 102 रन दिए हैं 5.1 से, पेसर्स ने 30 ओवर में 216 रन दिए हैं 7.2 से। तो इसमें क्लियरली नजर आ रहा है, जो बात मीडिया या एक्स प्लेयर कह रहे हैं कि हमारे पास स्पेशल स्पिनर नहीं है, स्पेशलिस्ट, अगर वो यहाँ पे स्पिनर 4 आउट किया होता तो गेम टोटली डिफरेंट होता। अबरार ने पावर प्ले में 1 आउट किया, लेकिन दूसरा बॉलर हमारे पास मौजूद नहीं था। पार्ट टाइम को वो विकेट नहीं ले सकते, वो रोक सकते हैं, आपको रन रोक सकते हैं, लेकिन हमें विकेट चाहिए थी, विकेट नहीं मिली, जिसकी वजह से लास्ट 15 ओवर्स आप निकाल के देख लें या लास्ट 10 ओवर्स निकाल के देख लें, लेथम उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, क्योंकि जो बॉलिंग हो रही थी, स्वीप या कट या पुल जिस तरह से मारे, और आखिर के 2 ओवर लेट अपने बॉलिंग की तो एक फील्डर और दायरे में आ गया। और ये मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की या जो भी इस पे इन्वॉल्व है, आपके फील्ड रिस्ट्रिक्शन में या टाइमिंग में बहुत काम करना पड़ेगा। 2 ओवर आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाते हैं, एक फील्डर और दायरे में आ जाए, आपकी फील्ड खुल जाती है। कोई फास्ट बॉलर से पूछिए भाई आपका एक फील्डर और आखिरी 2 ओवर में अंदर आ जाएगा, तो मैक्सिमम रन आपके 2 ओवर में बहुत ज्यादा बने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम आप तीनों से जब दोबारा बात करें तो पाकिस्तान बेहतर कंडीशन में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राशिद लतीफ़, मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज़ कर दिया है। बाबर आजम और साउथ शकील इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, बगैर किसी नुकसान के 1 रन बना लिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि आर्मी चीफ की वजह से दुश्मन को पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के इंच के टुकड़े पर भी कब्जे की हिम्मत नहीं। ब्रेडफर्ड में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कामरान टिसोरी ने कहा कि अब ऐसा आर्मी चीफ मुआशी हिफाजत के लिए भी तैयार है। मेरा तो ये मानना है कि जो हाफिज कुरान होता है उसके दिल में कुरान होता है, लेकिन मैं खुल के बात करता हूँ। आप बताएं कि अगर वो आर्मी चीफ जो कि आजाद कश्मीर की सरहदें हो या पाकिस्तान की सरहदें हो, क्या 1 इंच जमीन उसने किसी मुल्क को लेने दी? असल कमाल तो ये है ना कि इतनी बैरूनी मुखालफतें और साजिशों के बाद भी 1 इंच आपके मुल्क की आजाद कश्मीर हो या पाकिस्तान, कभी सुना कि किसी दुश्मन मुल्क ने हासिल कर ली? उन सरहदों की हिफाजत तो की है, और अगर वो माशी हिफाजत के लिए भी तैयार है, और SIFC जो कि उन्होंने एक बनाई और जिसमें हमारे तमाम दोस्त ममालिक, जिसमें चाइना, तुर्किया, सऊदीया, UAE पैसे डाल रहा है, इन्वेस्टमेंट ला रहा है, और अगर मेरा मुल्क खड़ा हो सकता है अपने पैरों पे, तो आप बताएं इस पर किसी को एतराज होना चाहिए? 29 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट के मेगा इवेंट ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज मैच से पहले पाक फजाइया के तैयारों ने नेशनल स्टेडियम के ऊपर से शानदार फ्लाई पास्ट किया। पाक फजाइया के JF-17 थंडर और F-16 तैयारे पाकिस्तान के कौमी तराने के वक्त स्टेडियम से गुजरे।